Hello dear students, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. We are covering the topic philosophy. We have already covered almost, and by today we will cover the decathlon events in detailed description. Basically, decathlon event किस तरह के हैं, कब इनका origin हुआ, इनका बेसिकली जो मेन चीज है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जो पॉइंट टेबल है उसको कैसे हम यूज करते हैं. दैट इज not so easy. So let's start with from this introduction of decathlon event is the combined event consisting of 10 track and field events. मतलब इसमें 10 इवेंट्स होते हैं जिसमें से कुछ ट्रैक इवेंट होते हैं और कुछ फील्ड इवेंट होते हैं और वो किस तरह के होते हैं उनको हम आगे जानेंगे. ये 2 दिन का इवेंट होता है. इट्स अ 2 day इवेंट्स founded in 1976 at France. It was introduced 2 day events in the Olympic Games in 1912. Acha, 1912, we are talking about 1912. You need to know that where the place was, where the 1912 Olympic was held. That was Sweden. Okay, that was a country, Sweden. Okay, good. And next is that international body of athletics is IAAF. The full form of this is that the International Amateur Athletic Federation. It was the name IAAF and its full form International Amateur Athletic Federation from 1912 to 2001, and in 2001 its name was changed IAAF from International Amateur Athletic Federation to International Association of Athletic Federation till 2001. To 19 it was International Association of Athletic Federation. In 2019, in October 2019, IAAF known was Athletic World Athletics. Okay, so nowadays its name is World Athletic instead of saying that International Amateur Athletic Federation or International Association of Athletic फेडरेशन. सो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके उनमें ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 2009 के बाद कोई रिसेंटली एग्जाम हुआ नहीं है तो ये करंट का क्वेश्चन भी, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी इसमें बन सकता है. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो डे अकॉर्डेंस डेकाथलन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं. तो फर्स्ट डे इवेंट 100 मीटर स्प्रिंट फॉलोड बाय लॉन्ग जंप फॉलोड बाय शॉर्ट पुट, हाई जंप एंड 400 मीटर स्प्रिंट. You need to know one thing that the decathlon events completed in 2 days. In first day or second day, the event start with short races and middle distance races end with, and उसके बीच में जो है वो various events है. तो 100 मीटर sprint, long jump, short put, high jump और 400 मीटर तो first day events, and second day events are 100 meter hurdle, discus throw, pole vault, javelin throw and 1500 meter race. Okay, right. For your convenience, LSH इसको आप याद रख सकते हैं. 100 मीटर 400 मीटर को इधर उधर छोड़ दीजिए एंड DPZ से आप सेकेंड डे इवेंट्स को याद रख सकते हैं. डेकाथलन वर्सेस इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स जो हैं वो क्या है वो आप देख लीजिए. तो 100 मीटर में डेकाथलन का जो रिकॉर्ड है, द रिकॉर्ड फॉर 100 मीटर इज 10.55 seconds for 100 meter in decathlon, and individual record is 9.58 seconds. For long jump it is 7.8 in decathlon, 8.9 in individual. Short put 16 meter, 23.12 meter in individuals. High jump for 2.05 meter and for individual it is 2.45 meter. 400 meter 48.42 seconds, and for individual event it is 43.03 seconds. The record for decathlon 110 meter hurdle is 13.75 seconds and 12.80 seconds for individuals. Discus throw 50.54 meter, 74.08 individuals. Pole vault decathlon 5.45 meter and 6.15 meter for individuals. Pole vault, and then javelin throw 71.90 meter. For individual it is 98.48. 1500 meter the record is 4 minute 36.11 second, and for individual its record is 3 minutes
26.00 seconds. The total score table for record July 2019 is 9,100 to 26 points. Okay, then the challenging thing is that चलिए हम इसके कुछ जो प्लेयर्स हैं उनकी कभी कभी नाम पूछ लेता है. तो now we'll go through the names of along with the records holder, okay, along with their countries also. So Calvin Mayer, France, there was a up to now the record holder for decathlon, okay, for achieving the highest point, as we have already given in previous slide. For individual records, Usain Bolt, Jamaica, 9.58 seconds for 100 meter. Long jump, Mike Powell, 8.95 meter. Brandy Barnes, USA, 23.12 meter. Javier Stomeyer is a Cuban, 2.45 meter for high jump. Van Merrick, South Africa, 43.03 second for 400 meter. Okay. Aris Merritt, USA, 12.80 seconds for 110 hurdle. Jürgen Sloth, Germany, 74.08 meter for discus throw. Sergey Buka, 6.14 for pole vault. Jane, Czech Republic के हैं ये, 98.48 meter. Next is Hakim E.L. Groj. He's from Morocco and his record is 3.26 seconds for 1500 meter. Okay, now we'll move on the points table, and this the important thing is that how we calculate the points for decathlon events if the players are performing with different kind of performance, like in seconds and meters, like 100 meter in second, long jump in centimeters, shot put in meters, high jump in centimeters, 400 meter in second, 110 hurdle in second, discus throw in meter, pole vault in centimeter, javelin throw in meter, and 1500 meter race is in second. So there are various kind of quantities are there, and we need to find out the actual points. Then how we will calculate to give or to find out the top athlete in decathlon. Okay, so there is a formula here for running track. The formula is event points are A multiplied by B minus P is to the power C. Here A, B or C, they are given in this table, and P is here in the performance of, or the actual performance of an athlete. Okay, so if suppose that if you are going to find out the value of point for 100 meter, the A is given 25.435 for the value, and then the value of B is that 18 minus performance. Suppose that if your athlete completing 100 meter in 12 seconds, so put 12 seconds here, then is to the power 1.81. And how we will calculate it, I will give you the calculation in coming slides. So now here you need to understand the how the formula works. Okay, and the formula for field events is that you just reversible B minus P instead of P minus B. Where the point, if field event points are A multiplied by P minus B is to the power C. And the how we apply this. Okay, here the index P refer to performance. A and B and C are the constant, they are given into the points table. Okay, so next, all times or the automatics, all the times they taken automatically if they are coming through software, or if you are doing by hands, then add 0.24 for hand times for 100 or 110 hurdles, and add 0.14 for hand times in 1400. And if you are calculating it for the hand time, then do this. Otherwise, if you are automatically, if you are putting it into a formula or something is software, then no need to do anything. Okay, P performance in centimeters, long jump, high jump, pole vault. Okay, the performance will be in centimeters. तो जो फॉर्मूला आपको दिया है पिछले A multiplied by B minus P is to the power C, वहां पे परफॉर्मेंस P जो आएगी वो परफॉर्मेंस तीन तरह से आती है.
या तो वो परफॉर्मेंस सेंटीमीटर्स में होगी, या वो मीटर्स में होगी, या सेकंड्स में होगी। तो परफॉर्मेंस जो सेंटीमीटर्स में होंगी वो कौन कौन सी होंगी? लॉन्ग जंप आपका रहेगा, हाई जंप रहेगा और पोल वॉल्ट रहेगा। परफॉर्मेंस पी मीटर्स में कौन कौन सी आएगी? डिस्कस थ्रो और जैवलिन थ्रो। और परफॉर्मेंस इन सेकंड्स 100 मीटर, 400 मीटर, 110 हर्डल एंड 1500 मीटर। तो जब भी आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो आप याद रखेंगे कि आपने जो परफॉर्मेंस की यूनिट है वो कहीं दूसरी यूनिट तो नहीं दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग जंप अगर आपको सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो यू नीड टू कन्वर्ट देम फर्स्ट इनटू द सेंटीमीटर, देन पुट दैट वैल्यू इनटू द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द राइट आंसर, अदरवाइज you will lose the question. Okay, now there is a question, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पूरी तरह से पता चल जाएगा कि हम जो है जो पॉइंट्स टेबल है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, चलिए बेहतरीन। एन एथलीट had completed his decathlon events along with the following entities, calculate the final score। मतलब एक एथलीट है जिसकी टाइमिंग दी हुई है, ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस शॉर्ट पुट की, हाई जंप की, लॉन्ग जंप जितनी भी है, पोल वॉल्ट है, 1500 है, सबकी यहाँ पे टाइमिंग या फिर डिस्टेंस कवर्ड जो है वो दी हुई है। तो अब इस टेबल के इस परफॉर्मेंस टेबल की हेल्प से और जो पॉइंट्स टेबल हमें दी हुई होती है उसकी हेल्प से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे करेंगे, चलिए अब हम आपको देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। तो 100 मीटर के लिए पॉइंट्स हम काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 100 मीटर क्या है आपका? ट्रैक इवेंट। ट्रैक एंड इवेंट के लिए द फॉर्मूला फॉर द ट्रैक इवेंट इज दैट a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस p इज टू द पावर c। अब चलिए a की वैल्यू देखिए कितनी थी, वहां से a की वैल्यू कितनी थी? 25.435 जो टेबल हमने दी हुई थी उसमें। b की वैल्यू 18 और परफॉर्मेंस कितनी आ रही थी अभी जो हमने क्वेश्चन में देखी थी? 10.55 और c की वैल्यू 1.81। चलिए इसकी कैलकुलेशन आप करते हैं। तो कैलकुलेशन के बाद आपको लास्ट में आंसर कितने पॉइंट मिल जाएंगे आपको? 956.17। ठीक है, ऐसे ही आप 400 मीटर की जब काउंटिंग करेंगे तो परफॉर्मेंस जो आ रही है वो रख दीजिए और टेबल से बाकी वैल्यूज जो है वो आप बाकी वैल्यूज को एज इट इज उठा के रख दीजिए, आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे 100 मीटर के लिए। तो जो ट्रैक इवेंट्स हैं उनके लिए फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, वैसे ही जो फील्ड इवेंट है उनके लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा। अब फील्ड इवेंट देख लेते हैं। तो फील्ड इवेंट में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जहां P माइनस वी जो हुआ करता था, चलिए मैं इसको बता देता हूं आपको। आप देखिए इसमें यहाँ पे जो P माइनस वी है ये B माइनस पी हुआ करता था, किसमें? ट्रैक इवेंट्स में। तो ये भी फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा और ये वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ सी, ये सारी की सारी जो है वो हर इवेंट में वो चेंज होती रहेंगी। वहां टेबल से आप चेंज कर करके इनको लिख लेंगे। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन करके आपको क्या करना है, वो आंसर्स आपको निकाल लेने हैं। ठीक है, तो ये देखिए हाई जंप का हो गया, परफॉर्मेंस कितनी थी? 205, 2.05 मीटर में थी, इसको हमने सेंटीमीटर में काउंट किया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि था जो फॉर्मूला है, इन द फॉर्मूला वी नीड टू इंट्रोड्यूस द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ फॉर्मूला। सो फॉर्मूला में हाई जंप की जो वैल्यू थी वो किसमें चाहिए थी? सेंटीमीटर्स में। तो हम मीटर की वैल्यू, जो ये मीटर की वैल्यू जो है यहाँ पे जो परफॉर्मेंस टेबल है उसमें क्या दी हुई है? परफॉर्मेंस टेबल में ये दी हुई है 2.05 मीटर। ठीक है, तो ये जो मीटर से इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? सेंटीमीटर में। जब हम सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 205। तो इसको यहाँ रख के फिर इसकी सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे। बाकी इसमें कुछ भी मतलब हार्ड नहीं है। ऐसे ही सेम कैलकुलेशन बाकी जितने भी बचे हुए हैं। फील्ड इवेंट का फॉर्मूला सेम है, बस आप कैलकुलेशन करते जाइए और बाद में अगर आपको कहीं भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर उसको पूछ लेंगे और हम उसको कमेंट्स बॉक्स में या फिर आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं, तो मैं वहां पे उसका आंसर्स आपको दे दूंगा। यहाँ मैंने सोर्स में सारी वो रखी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो कंपैरिजन एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया? ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए जो हमने वहां निकाली हुई थी जो वैल्यू सबसे पहले 100 मीटर के लिए
ए बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस पी, जो वैल्यू थी ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, और ये परफॉर्मेंस जो क्वेश्चन में थी वहां से ली, और ये पूरा हमने पॉइंट टेबल निकाल के फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, ये यहाँ पे ये 1500 मीटर के लिए आ गई, ये हो गया। ये आप देखिए शॉर्ट पुट की, ये 400 मीटर के लिए, ये जैवलिन के लिए, ये हो गया, और ये अब इन सबको जोड़ेंगे तो 9170.28, जो किसका रिकॉर्ड था, कैल्विन का। यही ये मैंने क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज दिया था जिससे कि आप जो आंसर भी अपना अच्छे से चेक कर पाए और इसको आसानी से कर पाए। तो ठीक है, ये था, दिस वाज ऑल अबाउट टू हाउ टू कैलकुलेट द पॉइंट्स इन डेकाथलन इवेंट्स। तो हम क्या करेंगे अब, डेकाथलन इवेंट्स के पॉइंट्स हमने काउंट कर लिए, ठीक है। आई होप दैट कि अब आपको बाकी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो चलिए आज की क्लास फिर यहीं खत्म करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।